वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे ॻाल्हि ॿोल कयूं था वॉलीबॉल जे हवाले सां। वॉलीबॉल हिकिड़ी अहिड़ी गेम आहे जेका पाकिस्तान जे अंदरि त एतिरी मक़बूल न आहे, पर पाकिस्तान जी जेका टीम आहे वॉलीबॉल जी उहा सुठी परफॉर्मेंस ॾेखारींदी रही आहे ओवर द ईयर्स। असां ॾिठो आहे ओलंपिक्स जे अंदरि बि ऐं मुख़्तलिफ़ जेका गेम्स थींदियूं आहिनि, एशियन गेम्स में बि पाकिस्तान ओलंपिक्स जी गेम जेका आहे ओलंपिक्स जी टीम जेका आहे मेडल्स खटे करे ईंदी आहे। पाकिस्तान जे अंदरि विमेंस लाइ बि इहा गेम जेको आहे वो उजागर कई पई वञे, हुननि जे लाइ बि वुमेन्स जे अंदरि बि प्रमोट कई पई वञे। हाणे पाकिस्तान जे अंदरि स्पेशली सिंध जे अंदरि जेका सिंध गवर्नमेंट जी ताउन सां फर्स्ट नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट करायो वियो स्पेशली फॉर द वुमेन्स। कोई 600 खां वधीक जेका आहे रांदीगिराड़ी आहिनि हुनमें जेका शिरकत कई। तव्हांखे ॾेखारियूं था उते बेसिकली कमाल जो माहौल हुयो ऐं पूरे पाकिस्तान मां जेको आहे नियाणियूं अची करे हिते वॉलीबॉल खेॾियो कराची जे अंदरि। Okay, so we have now Alisha Junaid. She is actually the organizer of this whole event. Just tell me the challenges, how much challenges you had to organize such a big event. You gathered around 600 girls from all over the country. How many challenges do you have? I think the most challenges that we had were just sort of underestimating what 600 people really means and what it means to be able to organize 600 people. And then I think another one of our challenges was this is our first time doing this in Pakistan. It's the first time anyone's done something like this in Pakistan. So I think we just maybe underestimated how much work it would be. But honestly, I think that the benefits far outweigh the challenges. We were able to make a very successful event and I'm proud of the turnout. And can you please tell me from where you get the idea to gather 600 girls in Karachi and organize the volleyball tournament especially? There are many other games, but you choose volleyball tournament. Why? I mean, I think you personally like this tournament. So in Power Sports Academy, we don't only want to focus on volleyball, but I myself am a volleyball player. So for an event of this scale, for the first time, we wanted to do something that we're familiar with, something that we have control over. If we did a game like soccer or something, I would have no idea how to run a tournament like that. But for me, I come from the US. I go to tournaments all the time where there's 1,000 teams playing in one weekend. So for me, I just wanted to bring that competitive energy to Pakistan so that people can play as many games as they want and get a lot of experience at once. And can you please tell us that the support you get from the government of Sindh and your sponsorship, how much you are satisfied from their support? Yeah. So honestly, I'm grateful for all our sponsors. The government of Sindh has been so helpful for organizing the girls' hostels and stay. We're able to bring all of them here because of that. They're being fed, they're staying here, they're getting internal travel buses. But not only then, also to our other sponsors, to Dove, to ESA Labs. They've helped us so much organize everything, getting these courts here, getting this facility. It's all a major help. And then we're also partnered with some companies in the US that have been helping us with the whole tournament planning, the schedules. And then BookMe, they've been helping us with the buses from Karachi to Islamabad. They've been helping us, organize all of this, have these registrations. So we're thankful for everyone because honestly, without all our sponsors, none of this would have happened. And this is already successful. This event is gone successful. What's next coming from you? I mean, I know this, that you will come up with another big opportunity for the girls. What next is coming? So we want to make this tournament an annual thing, and going forward, we want to add more and more sports. Just because we are passionate about volleyball, I love volleyball, but I know girls in Pakistan are passionate about many different sports. So we really want to expand this type of a tournament to other sports. And I think that's one of our goals. And then Empower's long-term goal is to create a state-of-the-art facility where we can train and educate girls at the same time so that they can achieve their highest potential in sports that they possibly can. Thanks a lot. Thank you so much. हमारे साथ एक प्लेयर है जो कि चित्राल से आई हुई है, इतने दूर से आई हुई है, उनके लिए खेल रही है यहाँ पे। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इंस्पायरेशन है कि आप जैसी लड़कियां पूरे पाकिस्तान से आके कराची के अंदर खेले। मतलब कौन सी चीज आपको इंस्पायर करती है वॉलीबॉल की तरफ? पहला तो ये कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, और सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी जिनने मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किए और बहुत मोटिवेट किए कि आप इधर आके पार्टिसिपेट करें। और स्पेशली जो हमारे कोचेज़ हैं, हमारे प्लेयर्स हैं, बाकी उनकी वजह से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है कि मैं इधर आऊँ और पार्टिसिपेट करूँ। अच्छा, और अपने पेरेंट्स का नहीं, आप सबकी लड़कियों के सबके पेरेंट्स को भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सबसे बात नहीं करती क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। जी, उन सब पेरेंट्स को सलाम है क्योंकि उनने अपनी बेटियों को हिम्मत दी, उन्होंने उनको सपोर्ट किया कि वो इधर आके एक नेशनल लेवल पे गेम खेल रही हैं। आप क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं? हमारा एक और मैच है अभी। क्वार्टर फाइनल गई जी। क्या उम्मीदें लगा रही है अपनी टीम से कि जीत जाएंगे? वॉलीबॉल टूर्नामेंट पहला टूर्नामेंट है, अगर जीत जाए तो बड़ी बात हो जाए। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे
क्या चैलेंजेस थे सच्ची बताएंगे यहाँ पे आते हुए, फिर यहाँ पे खेलना, सर्दियों का मौसम, वैसे चित्राल वालों को तो नहीं लगती होगी सर्दी यहाँ पे? सफर हमारे लिए बहुत लंबा था, पहली बात तो ये, और फिर एडजस्ट होना एक जगह से दूसरी जगह, और फिर नए लोग मिले, नए लोगों से इंटरेक्शन हुआ हमारा। वैसे क्या करती हैं मतलब पढ़ाई में, स्टडी में? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरा BBA सब्जेक्ट। फ्यूचर में क्या वॉलीबॉल ही खेलने का है? नहीं, फ्यूचर में इंशाल्लाह एक बिजनेस स्टार्ट करूंगी, अपना स्टार्टअप कोई। थैंक यू सर। You're welcome। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये तो मतलब के ताज्जुब हो गया कि पूरे पाकिस्तान को आपने इकट्ठा किया स्पेशली विमेंस के लिए। वॉलीबॉल में हमारी टीम वैसे इंटरनेशनली काफी अच्छा खेल पेश करती है, लेकिन विमेंस नजर नहीं आती, लेकिन आप इतने अच्छे से माशाल्लाह से ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट, क्या कहेंगे इतनी बड़ी सक्सेस की? देखिए अभी सक्सेस शुरू हुई है, अभी हुई नहीं है, मैं इसे सक्सेस नहीं कहूँगी। ये ज़रूर कहूँगी कि एक हमने सीड प्लांट किया है, उसमें अब थोड़ी थोड़ी सी आपको दिख रही होगी कि थोड़ा थोड़ा सा पत्ता निकलना शुरू हुआ है। तो ये जो आप आज देख रहे हैं यहाँ पर, इस वक्त पूरे पाकिस्तान से बच्चियों ने हिस्सा लिया है। 16 से 19 दिसंबर तक वो खेली हैं। पूरे पाकिस्तान में जो क्वालिफाई हुई हैं टीम्स वो कराची आई हैं। यहाँ पर आज क्वार्टर फाइनल्स चल रहा है, कल सेमीफाइनल्स है, फिर फाइनल्स है। इसी तरह ओवर 600 बच्चियों ने हिस्सा लिया है। ऐसे ही अगर हम करते रहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 1200 होंगी, ज्यादा होंगी। 600 लड़के यहाँ पे आई हुई है पूरी पाकिस्तान से। और यहाँ पर हमारे पास 24 टीम्स आई हुई हैं क्वार्टर फाइनल्स में। फैसलाबाद से आई हुई हैं, बावलपुर से आई हुई हैं, इस्लामाबाद से आई हुई हैं। देखिए सिंध से कितने आई हुई है? सिंध में बहुत बच्चियां हैं। किस किन शहरों से आई है? इस वक्त हमारे पास आई थिंक बावलपुर से हैं, सिंध से, हैदराबाद से आई हैं, लाड़काना, सक्कर, टंडू आदम से आए हैं और कराची की है। जबर। लेकिन देखिए ये एक दफा दरवाजा खुला है, उसके बाद अब पेरेंट्स भेजना शुरू करेंगे, उन्हें पता है हम क्या करें। क्या क्या चैलेंजेस है सच्ची बात है, क्योंकि विमेंस को इकट्ठा करना, उसके लिए फिर सिक्योरिटी, फिर उनके लिए इंतजाम, सारी चीजें, क्या चैलेंजेस है स्पेशली इस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में? देखिए चैलेंजेस ये है कि हमारे पास इस वक्त कोई सपोर्ट नहीं थी। एज अ प्राइवेट एंटिटी हम कर रहे हैं, हमें कुछ लोगों ने सपोर्टिंग अच्छी की हुई है, लेकिन उनके पास भी जैसे फेडरेशन की सपोर्ट है, लेकिन उनके पास कोई फंड्स नहीं है इसके लिए। तो वी हैड टू डू एवरीथिंग विच इज आवर जॉब। हमने ये अपने ऊपर शोल्डर पे ये किया, तो हमें खुद ही करना है। लेकिन हमारे अमेजिंग स्पॉन्सर्स डव है, ईसा लैब्स है, सिंध गवर्नमेंट है, दे स्टेप्ड अप। उसकी वजह से बच्चों का रहना, खाना पीना, और ये जो प्राइज मनी हम दे रहे हैं, हमारी हर चीज पे सीधे बच्चों को पैसे लग रहे हैं, और करना ही है। और ये आई थिंक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इतनी बड़ी प्राइज मनी किसी को दी हो। मतलब कि शर्जील साहब तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है ना इसमें, तो आप देख रहे हैं सिंध गवर्नमेंट कितनी बड़ी सपोर्ट वो कर रहे हैं, आपके साथ है, तो ये एक बूस्टर है, क्योंकि जब गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होती है तो इसका मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं। देखिए अगर इस वक्त गवर्नमेंट, ईसा लैब्स और डव ने हमारा इतना साथ ना दिया, और हमारे छोटे छोटे बहुत स्पॉन्सर्स हैं, नहीं दिया होता तो हम ये कर तो लेते हैं। लेकिन जो हम बच्चियों को देना चाह रहे हैं ना, ये तोहफे, उनके प्राइजेस, उनका रहना खाना। क्या प्राइज है, सबसे बड़ा प्राइज आखिर में? सो 3 हमारी गोल्ड टीम्स होंगी, विनिंग टीम्स 1, क्योंकि 3 एज ग्रुप्स है। फिर हमारे 3 सेकेंड प्राइज और 3 थर्ड प्राइज, तो 9 टीमें हैं। सबको टॉप जो 3 विनर्स हैं उनको 5 लाख है, सेकेंड 2.5 लाख है, फिर 1.5 लाख। ये कभी भी नहीं हुआ। और बेस्ट ये है कि हमारे पास 2 स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर बाइक स्पॉन्सर की हुई है विमेन ऑफ द मैच के लिए। तो ये बड़ी एक्साइटिंग न्यूज है। कराची और जी घुमाया है सबको आपने मैडम? अभी तो ये सिर्फ खेल रहे हैं, आए हैं सिर्फ। कुछ टीमें समुद्र के किनारे लेके जाएंगे, कुछ टीमें जो फ्राइडे को आ गई थी वो समंदर घूम ही है, लेकिन बाकी बस खेल रहे हैं। आपको पता है सुबह 8 बजे से खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। साथ इवेंट मैनेजर खड़ी है, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है, ये सक्सेसफुल गया है अब तक, क्योंकि इतनी बड़ी टीम्स आई हुई है, 600 के करीब लड़कियां आई हुई है पूरे पाकिस्तान से। ये तो इवेंट पहले से ही कामयाब हो चुका है, अब ये चीखे सीन रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। क्या फीलिंग है आपकी, कितना बड़ा आपका इवेंट कामयाब हो गया? देखिए एम्पावर का नाम है, वो जो नाम मेरे साथ जुड़ा है उसको लेके मुझे पावर मिली है, और ये हमारा लोगो ही ऐसा है, इसमें तो हर इंसान और गर्ल्स को इससे पावर दी है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किए है। तो ये देखिए, आप बच्चों का जज्बा देख सकते हैं, मोटिवेशन देख सकते हैं, आप क्राउड देख सकते हैं कि ऐसा इवेंट पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुआ। आप इनको देख सकते हैं कितना ये परजोश है यहाँ। मैं बोल रहा हूँ कि
आलिया भाई खत्म कर दो, मैं सुन सकूँ आगे। मैं खुद सुन नहीं पा रही और मैं इंटरव्यू देने में थोड़ा सा हो रही हूँ कि मुझे आवाज नहीं आ रही है, बहुत क्राउड है। मैम एक बड़ा सीरियस सवाल ये है, पाकिस्तान में तकरीबन 50% औरतें रहती है, अगर वो भी मर्दों के मुकाबले में हर जगह पे छाई जाए, यानी 50-50 का रेशियो हर जगह पे, क्योंकि नहीं दिखा जाता ना, स्पोर्ट्स में भी मर्द आगे होते हैं, हर फील्ड में मर्द आगे होते हैं, इसी तरह आप जैसे इवेंट मैनेजर्स, आप जैसे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो लड़कियों को आगे लेके आए तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। देखिए मैं एक पीटी टीचर थी, एम्पावर का नाम जोड़ा है, जो इससे पहले मैंने नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टास्क था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो हर काम किया जो एक मर्द करता है। मैं आउटसाइड गई हूँ, मैंने होटल सर्च किए हैं, मुझसे जो हुआ है मैंने किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। उन पेरेंट्स को क्या मतलब कि आप देना चाहेंगे पैगाम, जो कि अपनी बच्चियों को घर तक ही महदूद रखे हुए हैं? ठीक है सिक्योरिटी मसाइल हैं, गवर्नमेंट को देख रही है, लेकिन फिर भी अपनी बच्चियों को भी अपने बच्चों के बराबर ही उनको जो है हुकूक देने चाहिए मेरे ख्याल। बिल्कुल ऐसा ही है, आप ये बच्चे देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे थे जो कि क्वालिफाइड किए क्वार्टर फाइनल के लिए, लेकिन उनको यहाँ के लिए नहीं छोड़ा गया, तो बड़ी सैडनेस। हम बहुत रात तक लगे रहे उन पेरेंट्स के साथ कि प्लीज आप उनको यहाँ तो भेजें। ये चैलेंजेस आए थे कि पेरेंट नहीं मान रहे? नहीं, बहुत सारी टीम्स, तकरीबन 5 से 6 टीमें हमारी रुक गई हैं, इसलिए कि ये आउट सिटी हो रहा है, कराची में हो रहा है। हालांकि हमने उनको ट्रांसपोर्टेशन और होटल्स, हर चीज एवरीथिंग हमने उनको मुहैया किया। आपने देखा होगा ऐसा प्लेटफॉर्म इससे पहले पाकिस्तान में कभी गर्ल्स को नहीं मिला। तो ये मतलब कोई मीडिया इसको दिखा क्यों नहीं रहा? मतलब कि ठीक है कुछ मीडिया हाउस यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट टीवी पे टेलीकास्ट कर देना चाहिए था, ऑन एयर होना चाहिए था। जी बिल्कुल, मैं भी चाह रही हूँ अब आप आए हैं ना, हमें प्रमोट करेंगे, होपफुली कि आप रोज आएंगे। आज हमारा क्वार्टर फाइनल है, कल सेमीफाइनल, परसों हमारे साथ बिलावल भुट्टो होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप बॉयज आगे बढ़ के हम गर्ल्स को ये हौसला देंगे कि हम बॉयज से कम नहीं है। तो आपको जरूरत भी नहीं है बॉयज की वैसे तो, लेकिन बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इवेंट आज यहाँ पे फर्स्ट नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी का हो रहा है, इसमें इसके जो क्वालिफायर मैचेस हैं वो डिफरेंट पाकिस्तान के सिटीज़ में खेली गई, जिसमें इस्लामाबाद, फैसलाबाद और कराची। इस टाइम यहाँ पे इस्लामाबाद से 7 टीमें, जिसमें हमारे पास हज़ारा की टीम, आगा खान यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड फॉर रावलपिंडी की टीम है। इसके अलावा हमारे पास फैसलाबाद की टीम है, वहाँ से ट्रेवल करके आई, और यहाँ पे अभी हमारे पास मैचेस क्वालिफाइंग राउंड के क्वार्टर फाइनल्स खेले जा रहे हैं। और अभी हमारे पास आप देख सकते हैं 3 कोर्ट्स को हमने यहाँ पे अवेलेबल किया हुआ है। फर्स्ट जो है अबव 22, जिसमें ओपन एज है, वहाँ पे ओपनली जो है ना एज कोई फॉल नहीं करती, जो टीम बना सकता है वो खेल सकता है। सेकेंडली हमारे पास अंडर 21 रूल्स बताएंगे इस गेम का, थोड़ा वॉलीबॉल थोड़ा समझाएंगे हमारी ऑडियंस को कि वॉलीबॉल कैसे खेली जाती है? वॉलीबॉल एक ऐसा गेम होता है जिसका मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फीमेल्स पे अभी तक इतना जो है ना, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल्स की सिर्फ टीमें हैं। तो एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी का ये एक ऐसा स्टेप है जो कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए, आप देख सकते हैं जिनकी जो वो लड़कियाँ जिनकी हाइट ज़्यादा है, वो फिजिकली फ्लेक्सिबल है, या वो एथलेटिक स्किल्स रख सकती हैं, वो वॉलीबॉल खेल सकती हैं। वॉलीबॉल के लिए थोड़ी बहुत आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके साथ साथ आपको एक कोच की ज़रूरत है, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारी पाकिस्तान की यूथ को मिलेंगे तो ऑब्वियसली हम एथलेटिक्स में हम बहुत आगे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड जो एथलेटिक्स होती हैं वहाँ पे हमारी पाकिस्तान की इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। अभी भी मेरे ख्याल 19 एथलीट्स गए हुए थे ओलंपिक्स के। एग्जैक्टली। तो इसमें देख सकते हैं आप पाकिस्तान की वॉलीबॉल जो टीम है, जिनको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये भी वो वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं जो ग्रास रूट से उठ के आई हैं। मतलब इनको अपॉर्चुनिटीज़ दे दिया गया है थ्रू एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी। तो ये मैं समझता हूँ बेहतरीन यहाँ पे एक सेटअप एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी का है। मैं अगर बजाता खुद कहूँ तो मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ, एक ऐसे एरिया से जहाँ पे वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है, एक ऐसे एरिया से जो कि दुनिया का ज़मीन पे जन्नत कहा जाता है। तो एग्जैक्टली तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ऐसी बच्चियाँ हैं जो एथलेटिक्स जो है ना, जो स्पोर्ट्स का स्पिरिट रखती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इधर आप बहुत सारी सिटीज़ से यहाँ पे हमारे पास वॉलीबॉल खेलने बच्चियाँ आई हुई हैं और बहुत अच्छा खेल रही हैं।
और ये टफ बहुत ही टफ मुकाबले ये टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, मतलब कि एक मिसाली टूर्नामेंट, और सेकंड जो एडिशन होगा वो बहुत ही उससे भी tough अच्छा होगा. मुकाबले चल रहे हैं. It's a big, I think, success for all of us that the girls coming all over the Pakistan, especially in Karachi, around 600 girls are here playing the volleyball. It's big success for all of us. It was a very big surprise for me to see all these volleyball players here in Pakistan, because when I was in Pakistan as a coach of the national team, I didn't see a lot of players like this. I think that in Pakistan can be a lot of talent, but we need to looking for and then to train them, because if Pakistan will be able to train them, Pakistan can reach a good level in volleyball, in women volleyball. Especially if we look at other sports, the men especially are dominating in Pakistan. Women's are around nowhere. But in volleyball, around 600 girls are participating. The future is very bright for the women's in volleyball. In other sports also, we need to support the women's to come forward, especially in cricket and soccer. Field hockey, yeah, especially hockey. It's our national game. I know. How can we organize more events for them? So in this time, there is Empower who can help a lot, because Empower tried to create opportunities for the women here in Pakistan through the sport. So I think that it's very, very important. Does Empower only focuses on volleyball, or they are also providing opportunities in other sports too? No, I think by what I understood, they will try to start from volleyball, but then they can, yes, also to the other sports, yes. What the message you want to convey to the audience to support their children, especially their daughters, to come forward in any field in Pakistan? Through the sport, all the girls can learn a lot of things that they can use in their life. So sports, volleyball is very, very important for them. Volleyball for the women is a very good sport, so in all the world. And here in Pakistan, you have a lot of talent that you can use to become some good player and to build a strong national team who can play in the competition around the world. So for Pakistan is a good opportunity. How you see the passion of Pakistanis, especially in any kind of sports? We like cricket, but in any sport, look at the voices coming around, and it's a wonderful atmosphere here. What can you say about the passion of Pakistan? Pakistan is the Pakistani women is one who can involve a lot in what she do. So it's very, very important for them to have a dream, to have something to fight, to reach, and I think that volleyball can do it. Thanks a lot. Thank you. जी असां गॾु हिकु कोच मौजूद आहिनि जेका वॉलीबॉल टीम्स खे ॾिसनि पिया, हुननि जी कोचिंग पिया था कनि. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. भाई आपका नाम सर? मेरा नाम नौमानुद्दीन है. नुमान भाई, आप तो कराची से ही आपका ताल्लुक है. वॉलीबॉल का वाकई में आप भी इंटरनेशनल लेवल पर खेले हुए हैं, थोड़ा बताएं. नहीं, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला नहीं है, लेकिन मैं टेक्निकल ऑफिशियल हूँ और मेरे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मौजूद है. और बेस्ट प्लेयर जो भी डिक्लेयर होते हैं हमारे यहाँ इवेंट में, तो वो उसकी जो टीम होती है उसको मैं लीड करता हूँ. अभी ये कितने दिन पहले तक जो आपने मतलब सबकी कोचिंग की, क्योंकि टूर्नामेंट तो 2-3 दिन, एक दिन हुआ है शुरू हुआ है, ठीक है ना? आपने तकरीबन 1-2 महीना लगाया होगा लड़कियों पर, कोचिंग दी होगी, सिखाया होगा, या नहीं? ये अभी से शुरू? जब ये इवेंट अनाउंस हुआ तकरीबन 6 मंथ बिफोर, तो फिर हमने तैयारी शुरू कर दी थी कराची में. और कराची में सारी लड़की आ चुकी थी या चंद टीमों को आप दे रहे थे जो अवेलेबल? नहीं, क्योंकि मैं सिंध का कोच हूँ, तो हमने कराची में अनाउंसमेंट की थी अपनी स्टूडेंट्स को, जितने भी प्लेयर्स वहाँ गैदर हुए उनकी फिर हमने कैटेगराइज किया उनको कि कौन जो है वो अंडर 18 में जाएगा, कौन 21 में जाएगा, कौन जो है वो अबव कैटेगरी में जाएगा. अब ये मुझे बता, सिलेक्शन कैसे की गई है, यानी कि बच्चियों को सिलेक्ट कैसे किया गया? अब तो ओपन तो ट्रायल हुए नहीं थे, तो ये कैसे बेसिकली ये लड़कियां खेल रही है तो कैसे सिलेक्ट हो गए? नहीं, हमने जो अपनी टीम सिलेक्ट की थी तो हमने प्रॉपर वे में ट्रायल्स उनके कंडक्ट किए थे, और हमारे साथ पूरी टीम हैगी पूरी, जो कि सारे नेशनल उसमें लेवल पे खेलते हैं, और उसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं. हमारी मिस लुबना है, नोमा है, यासीना है, और सिंध वॉलीबॉल एसोसिएशन की सपोर्ट है हमें. तो इसलिए हमें आसानी है, हमें इतना मुश्किल नहीं हुई, इसलिए कि हम सभी स्टूडेंट को तकरीबन पूरा साल खिलाते हैं, तो हमें आइडिया है उनके बारे में. अच्छा, अब तो ये पहला नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, जब दूसरा होगा तो पूरे पाकिस्तान से मजीद लड़कियां आएंगी सामने, क्योंकि अब उनको पता
चल गया है, कितना बड़ा टूर्नामेंट। जी बिल्कुल, असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी और उनके माइंड में बस एक ही बात थी कि किस तरह कराची जाएंगे, जो दूसरे शहरों के लोग थे कि कैसे जाएंगे और खर्चा कैसे करेंगे। उनके माइंड में नहीं था कि सारा कुछ जो है वो एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो उसकी फंडिंग कर रही है और बेहतरीन तरीके से मैं कहूँगा कि ये इवेंट कंडक्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान में शायद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में जो है गर्ल्स एक जगह जमा हुई हैं वॉलीबॉल के लिए और उनको तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ये कोर्ट आप देख रहे हैं, बिल्कुल नया कोर्ट चाइना से मंगवाए गए हैं। सारा एक एक इक्विपमेंट जो है वो चाइना से आया, प्रॉपर सारा इक्विपमेंट है जो हमारी इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन जिनको यूज़ करती है उन इक्विपमेंट। बहुत शुक्रिया।